Fofi, if you're watching this, I'm really sorry. I did not mean to hurt you. Please forgive me and pick up the phone. क्योंकि तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा चलता है. But this time I have crossed the line and Fofi is not talking to me. रिस्पेक्ट रखना हमेशा, वुमेन की रिस्पेक्ट. और फोफी को भी तुम्हारी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए. फोफी, मेरे बेटे को माफ कर यू देवी. Hey guys, you all must have read the caption. So yes, my Naga girlfriend Fofi and I, we had a fight. We had a big fight. You must be thinking, "Arey yaar, instead of sorting things out, why is this guy vlogging?" Yeah, so the reason I'm here holding a camera instead of, making things right with Fofi, I just want to tell you, if any couples that are watching or single लोग भी अगर देख रहे तो the relationship that you see, जैसे Fofi and I, we are in a very very committed relationship and we both love each other a lot. We love each other. There are ups and downs in every relationship. मतलब हमेशा अच्छा ही नहीं चलता है. If your relationship is going smoothly without any problem ना, then there is a problem then. If there are no conflicts, तब थोड़ा issue होता है. But conflicts होना भी ज़रूरी है, so you get to know your partner. But I don't want to give relationship advice at the moment. I'm just a little bit sad and Fofi and I fought. The reason why we fought, I will not gonna say that, but so we are in a long distance relationship at the moment, and now that we are so used to each other, मतलब आपने मेरा व्लॉग्स देखा ही होगा, वी यूज्ड टू गो आउट टुगेदर, सब कुछ ना थोड़ा थोड़ा उसमें भी वी यूज्ड टू डू थिंग्स टुगेदर. बट नाउ देयर इज अ डिस्टेंस, राइट? तो कभी कभी थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है. तो yes, we fought and Fofi is not picking up the phone, and it's not her fault also. Sometimes I can be a little rude and mean. The face that you see on the vlogs, always smiling, making fun. I mean, a jolly guy. Like, I'm not like that 24/7. Sometimes I also get irritated, and sometimes I say things intentionally to hurt people when I'm angry. But I don't mean all of those things, because I hope you all understand. जब हम लोग गुस्सा होते हैं ना, when we are very angry, so we tend to say things to hurt the other person or partner. So I just want to say that I did that, and now I am regretting why I said all those things. I shouldn't have said. Of course, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्या, but if you all are watching, so it's whenever we are angry ना, it's better to control your tone. And already जो situation ख़राब है ना, उसको ज़्यादा बोल के ना ख़राब करना सही नहीं है. And also I want to say कि when we fight, like not we as in मैं और Fofi, but generally when we fight, तो it becomes a ये win or lose वाला एक situation हो जाता है कि अरे I have to win, I have to win. अरे it's not like that, man. मतलब अभी मैंने realize किया, Fofi और मेरा जो लड़ाई था वो हो गया. Now I said things to her which made her very upset and probably रोया भी है. And now that I'm sitting here thinking कि क्या, अरे यार ऐसा क्यों बोला मैंने ना. तो once you say things ना, you cannot take it back. There's a saying in English ना कि oh sorry, I didn't mean it, I'm gonna take it back. You can never take back your words, just trust me, man. So yeah, तो इसलिए अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बहुत बोल रहा है ये सब. बट वही है यार, वही आई जस्ट वांट टू से कि बहुत मतलब वी डोंट फाइट यूजुअली, तो इतना तो लड़ते नहीं है. बट इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया. आई थॉट आई जस्ट मेक अ वीडियो. आई नो शी इज़ गोना वॉच. Fofi, if you're watching this, I'm really sorry. I did not mean to hurt you, and please forgive me. And whatever you said to me earlier was actually right.
एंड कभी कभी ट्रुथ फेस करना इट्स डिफ़िकल्ट, बट ट्रुथ तो हार्श ही होता है, बट इट्स अ ट्रुथ. वट एवर यू सेड, आई एम गोना टेक इट very positively, and I'm gonna make that my motivating factor. All right, so yeah, please forgive me and pick up the phone if you're watching this vlog. So भाई लोग, आज का vlog तो I mean there will be a lot of relationship advice, okay? ठीक है, let's keep it that way. आज relationship advice ही सुनो आप, not with just me but with everybody. अभी मैं बाहर जाता हूँ, मम्मी भी होगा, मयूर भी है, ठीक है. I'll just drink water and wait. That's all I can do at the moment. मम्मी, मैंने गुस्से में फोफी को कुछ ऐसा बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था. क्यों, क्या हो गया अचानक? वो कभी कभी कपल के बीच में भैया हो तो जाता है, यू नो ना, कपल तो लाइक वी फाइट वी समटाइम्स. So this time I said something that I am regretting now. So बट वो तो है, whenever you get angry you become very wild. वो सब मैं नहीं देखा है, और आई मे बी शायद फोफी ने देखा है. वाइल्ड तो नहीं होता. वाइल्ड मतलब क्या? क्योंकि तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है. एक्चुअली यू आर लाइक मी. बट मैं तो अपने कंट्रोल में हो जाती हूँ, बट वो आउट ऑफ कंट्रोल. यू आर ऑलवेज आउट ऑफ कंट्रोल. बट व्हेनेवर यू गेट एंग्री, तो वो ऐसा है ना बेटा, जब तुम बोलते हो ना कुछ, कहते हैं ना, वर्ड्स यू कांट टेक बैक. I said earlier. वर्ड्स यू कैन नॉट टेक बैक. वही कहते हैं, एक्शन से ज्यादा वर्ड्स हर्ट्स. तो सोच के बोलना चाहिए, ताकि वो रिग्रेट ना हो बाद में कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, और दूसरे वाला इतना हर्ट हो जाए. इतना भी ज्यादा वो नहीं बोलना चाहिए. नहीं, उस टाइम तो आई नो कि जब वो एंगर होता है, एंगर निकल में, गया. हाँ, एंगर में निकल जाता है. मेरे साथ भी हो जाता है, कुछ निकल जाता है कभी कभी जब आई गेट एंग्री. बट वो बाद में रिग्रेट तो होता है ना. बट मैं तो ये सोचती कि सोच के, मतलब आउट ऑफ लिमिट नहीं जाना चाहिए. मतलब कि इतना ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे को इतना हर्ट हो जाए. मैंने तो हर्ट कर दी. मैं तो हर्ट कर दिया. अब मनाओ. अब हर्ट किया तूने तो तुम्हें को मनाना चाहिए. एक्चुअली पता है क्या है सिचुएशन, इस तो ऐसा भी था ना कि वी आर नॉट टुगेदर एट द मोमेंट. हाँ. सो देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस एंड शी इज आल्सो स्ट्रेस्ड. काम का हम लोग भी यहाँ पे स्ट्रेस्ड है. तुम आपको पता है ना कि मतलब जब गुस्सा, मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या है गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू. मेरे को ना इफ आई एम इरिटेटेड ना, और कुछ भी होता है ना, मेरे को ना वो अच्छा नहीं लगता. ऐसा कोई ना मेरे को ना उंगली करे ना, फालतू में बोले क्या हुआ ना. आई लाइक टू बी लेफ्ट अलोन. बट दिस टाइम आई हैव क्रॉस्ड द लाइन एंड फोफी इज नॉट टॉकिंग टू मी. अच्छा, तो तभी तुम मेरे फोन से उसको मिला रहे थे. वो तो मैं ऐसे ही टेक्स्ट करो उसको पहले, उसके बाद वो उठा दी. वो भी गुस्से में होगी, थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही उठा लेगी. गुस्से में नहीं है इस बार. फोफी इज हर्ट दिस टाइम, नॉट गुस्सा. हो जाता वो. वैसे तो लाइक वी बोथ आर वेरी अंडरस्टैंडिंग तो है हम लोग, बट कभी कभी ऐसा तो होता है यार, कपल्स में, हस्बैंड वाइफ में होता है, कपल्स में होता है, लड़ाइयाँ होती है. अगर ये फाइटिंग नहीं होगी तो उसमें तो मतलब यू कांट बी एवरी टाइम, यू कांट बी क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल. व्हाटएवर यू फील यू शुड एक्सप्रेस दैट फीलिंग. हाँ, ये नहीं कि तुम हमेशा एवरी वन कांट बी हैप्पी एवरी टाइम ना. हाँ, वो तो है. तो जब भी जैसी फीलिंग होती है तो वो फाइट तो हर जगह है. मम्मी पापा मेरे और पापा में नहीं होती, वो धर्मशाला में फिर भी फोन पे होती है कभी कभी. तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है. she'll be fine. हाँ, she'll be okay, but अभी उसका कुछ दिक्कत नहीं है. दिक्कत आपके लड़के का है. आपके लड़के ने, I know. मैंने ना यार उसको ना कुछ ज़्यादा ही पर्सनल लेवल पे हर्ट कर दिया यार. क्या बोल दिया ऐसा? मैं नहीं बताऊंगा ऐसा. तो मैं, मुझे पता कौन सा बताओगे तुम. तो ठीक है. तो फोफी, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई नो यू गोना वॉच दिस, नोटिफिकेशन तो आएगा ना, तो प्लीज. फोफी और तुम्हारा व्लॉग ना देखे, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब माफ कर दीजिए, ठीक है. एंड व्हाटएवर यू सेड टू मी अर्लियर, जिससे मेरे को गुस्सा आ गया, बट इट वाज ऑल गुड. इट वाज मोटिवेटिंग आल्सो, तो इट्स फाइन, चलेगा. बट मम्मी, कुछ एक रिलेशनशिप एडवाइस आपको देना चाहो तो मुझे भी दे दो, उनको भी दे दो. रिलेशनशिप एडवाइस.
मैं क्या दूं यार, वो मेरी तो अरेंज मैरिज थी, एज यू नो, एज आई थिंक सब्सक्राइबर को भी पता है। तो फिर भी कुछ आपका बस ये कि लगड़े 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 रहो। लगड़े और झगड़े लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं और होने भी चाहिए फॉर हेल्दी रिलेशनशिप, बट इतना भी एक दूसरे को ना समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो कैसा फील, अगर मैंने ऐसे बोला तो उसने कैसा फील किया होगा। तो ऐसा देख के अपने बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स फाइट तो होगी होगी और होनी भी चाहिए, जैसे मैंने बोला हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, बट कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। रिस्पेक्ट रखना हमेशा, वुमेन की रिस्पेक्ट, और फोफी को भी तुम्हारी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, तुमको उसकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। और आज बहुत, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, बढ़िया हो गया। और आई एम हैविंग ग्रीन टी। मयूक अपने रजाई के अंदर घुसा हुआ है, बट मयंक इधर से उधर घूम रहा है रेस्टलेस होके। स्ट्रेस हो गया ना। फोन क्यों नहीं उठा रही है? उठा लेगी उठा लेगी उठा लेगी, नहीं तो मैं करूंगी अपने फोन से उसमें। कब तक गुस्सा होगी, वरना उठा लेगी फोन तो। Anyway guys, this is it is a vlog since it's gonna go in my YouTube channel. But ये एक तरह से वो भी था, मतलब I just wanted to talk because I was feeling very restless. I just wanted to talk. तो और कल व्लॉग भी तो नहीं आया था तुम्हारा। हाँ यार, व्लॉग ने, मैं बहुत बिजी हूँ यार, बहुत। अब I'll try अब से ना थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2 months तो बिजी रहेगा मैं। अभी तो बिजी रहूँगा। हाँ, Yeah, I just wanted to talk and शेयर योर फीलिंग्स। share my feelings, and फोफी को भी मेरे को What पता happened है। today? Yeah. But anyway, फोफी माफ कर दीवी, you know your boyfriend is माफ कर दो भी फोफी, मेरे बेटे को माफ करू देवी, कुरु देवी कुरी दीवी, माफ कर दी। फोफी। एंड हाँ, थोड़ा गुस्से में मैं कंट्रोल करूँगा। वैसे तो यार मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं बहुत चिल हूँ मेरे को नहीं आता गुस्सा, बट जब आता है तो अच्छे से नहीं। ज्यादा मूड खराब है तो मम्मी को लेके चलो मॉल। मेरा मूड खराब है, मेरा मूड खराब है, आप मेरे को लेके चलो भाई। क्या तो तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, मम्मी को लेके चलो। चलो गाइस, तो या अगर आप लोग भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो, इफ़ यू आर डीलिंग विथ सच सिमिलर सिचुएशन, सो प्लीज़ जस्ट यू नीड टू टॉक इट आउट। एंड जो मम्मी ने बोला, फॉलो दैट, मैं भी वही फॉलो करूँगा, एंड आई विल बी वेरी माइंडफुल नाउ। ठीक है, चलो देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। ये तो आप लोगों ने मेरा एकदम रैंट है ना वो सुना है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। And yes, I'm gonna see you in the next one. Thank you for watching. If you like this video, you know what to do. Like, share, subscribe, and keep on supporting, man. ठीक है, चलो, bye bye. मयूक, कोई रिलेशनशिप एडवाइस दे दो। खुश रहो, खुश रहो, हंसते रहो। तेरा और प्रिंशा का अगर लड़ाई होता तो कैसे ठीक होता? खुश रहो, हंसते रहो, सुनते रहो, बोलो मत ज्यादा।